Triggered Insan has just gotten married, and while he has blocked me, I'm in my congenial era, as everybody knows, so I'm going to be nice. I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits. But I do love the flowers falling, and the bride, honey, she's muggy. It's muggy in here. Imagine it's your wedding and people are judging based on your own wedding outfit कि भाई तुमने अपने ही शादी में क्या पहना है, because it's trending कि ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका की शादी हो गई है. But there are some people जो कि इस चीज को भी क्रिटिसाइज करके व्यूज पाने की कोशिश कर रहे हैं, like सूफी मोतीवाला. And if you don't know who is सूफी मोतीवाला is, तो मैं पर्सनली सूफी मोतीवाला को द रेबल किड के दोस्त के हिसाब से जानती थी. एंड ऑल्सो फ्रॉम द वीडियो वेयर सूफी मोतीवाला ने द रेबल किड को साथ दिया रजत पवार के साथ कंट्रोवर्सी के टाइम अपने दोस्त अपूर्वा को डिफेंड करते हुए. हमारा यूथ बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा है फॉरेन के. हमारा यूथ तो बाप है क्या यूथ का भाई. लेकिन अभी सूफी मोतीवाला क्लाउड चेसिंग के मोह में इतना ज्यादा गिर गया है, इतना ज्यादा फंस गया है कि अभी वो किस चीज के ऊपर रिएक्ट करेगा उसको समझ नहीं आ रहा, तो लोगों के शादी के आउटफिट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है. इफ यू डू नॉट नो, सूफी मोतीवाला हैज इंस्टाग्राम प्रोफाइल वेर ही बेसिकली पोस्ट कमेंट्री वीडियोज अबाउट पीपल्स आउटफिट फ्रॉम लाइक मेड गाला और लाइक ऐसे जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जो भी लोग ऐसे आउटफिट पहन के जाते हैं, तो वो सारे टाइप के आउटफिट के ऊपर ऐसे कमेंट्री वीडियोस बनाते हैं. चाहे उनका खुद का फैशन सेंस हमको 2 out of 10 लगे, बट दिस टाइम ही वेंट टू फार बिकॉज ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका की शादी हुई है. एंड गेस व्हाट, उसने सोचा क्योंकि रुचिका एंड ट्रिगर्ड इंसान की शादी इज ऑन ट्रेंड नाउ, सो लेट्स क्रिटिसाइज हिम, लेट्स गेट सम अटेंशन फ्रॉम द ऑडियंस. तो उस चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा बोला. Triggered Insan has just gotten married, and while he has blocked me, I'm in my congenial era, as everybody knows, so I'm going to be nice. I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits, but I do love the flowers falling, and the bride, honey, she's muggy. It's muggy in here. And the colors, I'm not necessarily sure why he's wearing sunglasses. I mean, look into your wife's eyes, diva. I do love the fact that they're decked in jewelry. That part I'm actually serious about. And it looks gorge. 8 out of 10. Thank you for watching. Follow for more. Bye. I'm tired of being nice. This ain't fashion. This is just shiny pathars. While I love the pink on Ruchika, Triggered, you need some of these pathars to go away. Sometimes less is more. 6 out of 10. Actually, 4, 8. I really want to say 0 because these beige shades are really icky, but I know people will not get that, so 1 out of 10. This look, on the other hand, is viewable. I mean, I viewed it and I wasn't averted by it. That's the most confusing jacket I've ever seen, actually. I don't want to give it a score. The mumsy, on the other hand, is looking so iconic. And this look is cutesy, very Abhinav Mishra coded, if I say so myself. 7 out of 10. Then this is their sister. I actually don't want to do this, but y'all have made me do this. The looks are highly questionable, but they're all pretty people, and I'm so happy for their wedding, and it's just all so iconic. Hashtag Miss Congeniality. And thank you for watching. Follow for more. Bye. Sari but not sari, because this wedding season saris reign supreme. Ruchika got married to Triggered in this Banarasi inspired sari moment. I love the color scheme, so traditional. The jewelry, the little pokey on the blouse, I love it. 10 out of 10. Fukra is wearing the sherwani that I've seen on a bazillion people before. There's nothing wrong about it, but is there anything good about it? This is their sister. I don't know why she's entering with bodyguard at her family's wedding. Like, who's gonna attack you, girl? I might for that outfit, but like, you don't need bodyguards for that. Miss Dhuli Pala is also at a wedding, and she has opted for more risque sari looks. But I have to give it to her as an attendee. She looks divine and iconic. So ditch the lehengas and choose saris to get married or attend them in, baby. It worked. Thank you for watching. Follow for more. Bye. Ooh. अभी देखो YouTube एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहाँ पे कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है और कंटेंट्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है. कुछ ना कुछ जॉनरा का कोई ना कोई वीडियो बहुत ज्यादा अमाउंट में तुमको देखने को मिल ही जाता है. तो इसलिए अभी के टाइम में जो चलता है दैट इज नॉट कंटेंट, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, कि एक कंटेंट के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है. सो मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑन यूट्यूब दीज डेज आर कमेंट्री वीडियो नाउ. हर कोई किसी ना किसी के कंटेंट के ऊपर कोई ना कोई कमेंट करता रहता है, जस्ट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाट इज वर्किंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ. तो कॉन्टेक्स्ट देने के चक्कर में एंड क्रिटिसाइज करने के चक्कर में कुछ लोग इतना ज्यादा क्लाउड चेसिंग के अंदर घुस जाते हैं कि दे डोंट केयर कि कितना ज्यादा हेट उनको मिलने वाली है. दे डोंट केयर कि इफ दे आर गोना गेट कैंसल्ड और नॉट. तो ऐसे ही कुछ सूफी मोतीवाला के साथ हुआ, क्योंकि उनके ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट करने के बाद निश्चय मल्हान के छोटा भाई यानी कि फुकरा इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए अपने वीडियो में एंड कुछ इस तरीके के रिप्लाई दिया सूफी मोतीवाला को. भाई ऐसे लोगों को ना प्लेटफॉर्म ही नहीं देना चाहिए. इनका काम पता क्या है? दूसरों के बारे में फालतू बोलो. इंटरनेट पे तो भाई सीधी सी बात है, यही चलता है. किसी के बारे में फालतू बोलो, एंगेजमेंट मिल जाती है तुम्हारे को, और कुछ नहीं है. अब इस भाई के भाई बहन जो भी है, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ. वाह 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 भाई साहब, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो. 0 out of 10 डार्लिंग, 0 out of 10. एंड
मुझे पर्सनली लगता है कि फुकरा इंसान के साइड से इस तरीके की कमेंट करने का कोई नेसेसिटी नहीं था, बिकॉज तुम किसी गलत को गलत बोलने के लिए खुद भी नीचे गिर रहे हो। आई लव यू भाई। अरिजीत कौर ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है। दो सुअर, एक क्लाउड, एक टेस्ट ट्यूब और एक आगे पूरा भाई ने एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तेरे को जज कर दिया, तूने पहना क्या हुआ ये, साथ पर्स पकड़ा हुआ है। अबे यार मैं क्या बोलूं इसको। By saying homophobic stuffs of course, और ये जो तुम बोल रहे हो कि क्रिटिसाइज करके ही लोग ऊपर जाते हैं, you and your brother both of you do the same things on the internet from the past, पता नहीं कितने सालों से। राजा भैया ये क्या हरकत कर रहे हो यार। राजा भैया हेजिटेट राजा प्लीज, भैया। राजा भैया थोड़ा सा तो शर्माइए। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने वो राइट खो दिया है जहाँ पे आप किसी को इस बारे में कॉल आउट करो कि क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है कोई। सो दीज आर द ऑल कंट्रोवर्सीज बिटवीन सूफी मोतीवाला एंड मल्हान फैमिली दीज डेज। ऑल्सो रुचिका के आउटफिट को लेके भी काफी ज्यादा बोला जा रहा है, बट व्हाट आई फील इज द मोस्ट सैडनिंग पार्ट ऑफ दिस होल कंट्रोवर्शियल थिंग इज इन दोनों की शादी हो रही है इतने सालों बाद, साथ में रहने के बाद, और वहां पे लोग आउटफिट पे ध्यान दे रहे, लुक्स पे ध्यान दे रहे, ना कि इन दोनों की खुशी पे कि इतने सालों वेट करने के बाद फाइनली दे गॉट टू गेट इच अदर। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या गलती कर दी उन्होंने शादी करके कि लोग इतना ज्यादा इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इतना ज्यादा अनाप शनाप बोल रहे हैं, ताकि हम भी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि व्हाट वेंट एक्चुअली रॉन्ग। So yeah, let's get into the video. So here we go. रुचिका निश्चय की शादी 2 घंटे पहले ही डाला है. Let's see. And it seems like every last human being on India is making video on it. And I am not the only one. So yeah, why not? Let's watch. Damn. By something Bye. we can't see. I was out in the night. ये कॉपीराइट फ्री सॉन्ग है ना फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ये काफी ज्यादा ग्रैंड वेडिंग तो लग रही है भाई, जो भी बोलो। यार मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है जब इतने सालों का प्यार फाइनली सक्सेसफुल होता है ना शादी। पता नहीं क्यों लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, देखो ना कितने खुश है सब लोग भाई। ऊपर से इतनी अमीरी चीजें देखने में किसको मजा नहीं आता बताओ, सिर्फ कंट्रोवर्सी करने बैठ जाते हो। सिंपल आरती तो बहुत ही वो तो अभी मेरी ज्वेलरी ही नहीं देखा है भाई। दिस इज एवरी गर्ल्स ड्रीम की शादी में जब तुम तैयार हो रहे हो और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने बैठे तुम्हारा मेकअप देखे, यू नो, एंड ये हो रहा है भाई, रियलिटी में हो रहा है, देखो भाई। यही करता रहा है। चले कैसी लग रही हो? बहुत सुंदर लग रही है। वाओ, कैसी लग रही है बता दो। बहुत सुंदर लग रही है। कैमरे में लेके बोलो ना। बहुत सुंदर लग रही है। क्वालिटी देख रहे हो कैमरा की। भाई भगवान करे ये कॉपीराइट फ्री हो प्लीज।
डिम्पल आंटी के तो 20 साल कम लग रही है वो अपनी एज से। भाई 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 देखो एक बार। हर लड़कियों के पता है एक ड्रीम होती है जब बहुत सारे पैसे कमा लेना तो अपनी मम्मी को ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहना ले। आई डोंट नो अबाउट मेन ऑब्वियसली, लेकिन लड़कियों के पर्सपेक्टिव से तो मैं बता सकती हूँ ना। और ये ड्रीम होती है कि अपने मम्मी को अपने पापा को ऐसे पूरा मॉडर्न तरीके से सजाओ, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जाए। लौंडे सारे यहाँ के खराब हो गए, शादी एक दिन पढ़ के ही पास हो गए, चलते हम स्मार्ट हो गए। काफी सारे यूट्यूबर्स गए थे, ऐसा नहीं कि इनवाइट नहीं किया था। सिबलिंग्स फाइट तेरा भाई किसी और का मत। निश्चय हमेशा से बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग भाई रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे उसकी लाइफ का एक नया स्टेप ले रहा है वो, तो उसमें भी वो उतना उससे भी ज़्यादा लविंग केयरिंग, वो उसका एस्पेक्ट और एनहांस होके निकलेगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी दैट। इनिशियल मुलाकातों के दौर में ही निश्चय से जब मैंने पूछा था कि निश्चय भैया डू यू हैव एनीवन इन योर लाइफ, अरे तो उन्होंने सुनियो मुझे भी बताया गया था है हाँ शादी में। मेरी जिंदगी में कोई है। भाई अमीर लोगों की शादी में अमीर लोगों को इनविटेशन मिल गई है। मेरे को प्रेरणा दी बहुत पसंद है वैसे, देखो बहुत जॉली है। गए तो है काफी सारे यूट्यूबर्स। वेट ओके, कुछ लोगों को ही मैं पहचान पा रही हूँ, बट आई थिंक काफी लिमिटेड यूट्यूबर्स गए थे। आई डोंट नो, आगे जाके पता चलेगा क्या है। अभी तो हम सिर्फ 4 मिनट में, लेट्स सी। ये वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। वीडियोग्राफी काफी अच्छी हुई है। बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि ऑलरेडी 2 फंक्शंस हो चुके हैं एंड कल शादी है। आई एम एक्चुअली नॉट नर्वस, आई एम स्पीचलेस, आई एम एक्सप्रेशनलेस, वर्डलेस, पता नहीं, बट या इट्स फाइनली हैपनिंग। धीरे धीरे वो वाली फीलिंग जो है ना वो आने लग गया कि ओके भाई अब एक्चुअली शादी का वक्त आ गया। अभी मुझे पता चला कि मैं लेट नहीं हूँ, सो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम और एक्साइटेड हूँ। बट वेरी एक्साइटेड टू सी माय ग्रूम। भैया घर पे आए बांधने, इन्होंने पगड़ी बांधी, पहली बारी में बंधी नहीं, तो भैया कहते हैं हाँ बस देख लिया, अभी मैंने कपड़ा देख रहा था मैं। डिनाई कर दिया, ट्रायल बॉल बोल दिया। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज आपकी? दुनिया जानती है। You must be living under rocks. बहुत सालों से ये चीज सोचता आ रहा हूँ, जितने भी गाने होते हैं उसमें मेल सिंगर होता है, लड़का जो है वो फीमेल की तारीफ कर रहा होता है, तू इतनी सुंदर है, चांद से भी ज्यादा सुंदर, फलाना फलाना, ऐसी लाइनें हैं। कभी कोई गाना सुना है जिसमें लड़की बोल रही है वाह कितना हैंडसम लड़का है? एक है वाह सच हैंडसम बॉय, इससे तो बड़ा मजा आएगा। लड़कों के लिए गाना बना और वो भी क्या बना, तेनों गुड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। भाई मतलब मैं क्या बोलूं? प्लीज लेट मी कॉम्प्लीमेंट रुचिका। नोनू रेडी है? मैंने किया रेडी भाई। क्या हो गया भाई? बहुत इमोशनल मोमेंट। नगर तो डाल दे। हाँ यार पैसे दे। ये ले। थू 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 थू। अभी वैसे शेरवानी पहनी नहीं है, पर
साबा इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है इतना बड़ा हो गया ये। Every endless sister is talking. बट मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लग रही है इस वीडियो में देख के कि डिम्पल मल्हान जो आंटी है बहुत ज्यादा यंग लग रही है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरे को एक तो बहुत पसंद है, मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी कोई ओल्डर वुमेन बहुत ज्यादा यंग दिखते हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ज्यादा क्लासी दिखते हैं, ठीक है, I just love that. I love that definitely. सही है। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात। वीडियोग्राफी मेरे को बहुत पसंद आ रहा है कि लाइक वीडियो जिस तरीके से जिसने भी लिया है बहुत अच्छा काम किया है, कलर ग्रेडिंग, you know everything. जिद्दां दा भी समा होवे एक मेरा बार देखो तेरे नाल क्वालिटी। ही खुशियां ते तेरे नाल ही हसाया तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा साम के ते तेरे नाल ही करा बात जिद्दां दा एंड इट्स देयर चॉइस कि उन्होंने रेड कलर की ड्रेस मंगवाई या क्या। अभी जो फैशन है वो सब्जेक्टिव है, किसी को कुछ पसंद आ सकता है, किसी को कुछ और, सबकी चॉइस सेम थोड़ी होती है। शायद उनको ये रेड कलर के ये जोड़ी एंड ये जोड़ा अच्छा लग रहा हो। भी समा होवे मेरा तेरे नाल ही खुशियां ते तेरे नाल ही हसाया घोड़े पे बैठ पाने वाले भाई, आप राजा महाराजा लग रहे हो, महाराजा। ओनली 2 मिनट ले भाई ले, मुझे सब दिखाई दे रहा है। डैम ड्रोन शॉट्स हुए हैं काफी अच्छे। देखो क्वालिटी तो है वीडियो में, जो भी लाइक ऐसे वेडिंग वीडियो बनाया है इसने। लम्मे लम्मेरा लम्मे चल देने सा लम्मी उम्र होवे एहो मंगदी दुआ हो गल्लां दिल दियां कर सजना गल्लां कर बस प्यार अच्छे से लिया था, एक बाहर से रूम में लाके। दस कूण तेरे ना गल्लां छड्ड संसार दियां ओ गल्लां भाई, छड्ड बहुत बड़ा होटल है। संसार दियां मैं छड्डता जहानियां वे मेरे दिल जानियां वे मेरे लाइक वो दिल बॉलीवुड वाला जो फील नहीं होता वैसा वीडियो में। दीवानियां All the best wishes to them. बढ़िया शादी कर रहा है, मैं तो ये सोच रहा था शायद शादी करेगा। सालू भाई हाँ, तो अब शादी कर रहा है, बढ़िया है। हमें साथ में और 2 बंदे मिल जाएंगे, घूमने के लिए, साथ चिल में करने घूमते के थे, लिए। अब उनको भी साथ लेके घूमेंगे। सीधा सोच रहा है थोड़ा अभी महंगाई इतना ज्यादा हो गया, थोड़ा ऐसे क्या पता थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो जाए घूमने जाते टाइम। सनडाउनर शादी, बारात, लाइटरी वो की बारात, बहुत बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा एंजॉय किया। शायरी वो एक गाना गाता हूँ। आँखों का मेरी नूर हो तुम अर्श से उतरी very हूर happy, हो तुम ये जो happy happy moment है काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें तुम हो जन्नत की तस्वीर हो तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम जीता जागता ख्वाब तुम्हें तुम हो एक पल जो तू आ जाए सबके दिल पर छा जाए हवा भी तेरी कायल है खुशबू हर सू फैला जाए मुझको और मजबूर न कर बहुत हुआ और दूर न कर इस दिल का फितूर तुम्हें तुम हो। ये गाना किस ट्रिगर क्या बोलते हैं फुकरा इंसान का है क्या? एक जो भी बोलो
पूरे फैमिली को इतना ऊपर उठाने के लिए ट्रिगर्ड इंसान का बहुत बड़ा हाथ था। बाकी सब लोग अच्छा काम करते हैं बट नेपोटिज्म के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए होती है एंड ट्रिगर्ड इंसान वाज द स्ट्रॉन्ग बेस, सो आई थिंक ही डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस एक्चुअली। बारिश में बादल के जैसा तू कश्ती, मैं साहिल के जैसा रिश्ता हो, कुछ अपना ऐसा ये दुआ मेरी। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, बचा हमारे जूते। भाई हमारे साइड। अरे वो पैसे लो यार, जूते का टाइम होता है उसको पहनने। देरी हो रहा है यार, इसको पहनने दे। मजबूर के पैर टूटे हुए हैं, उसने चप्पल उतारी है, वो भी चुरा के ले गए भाई। We're gonna talk about the outfits later on the video, but I like this one. भर लूं मैं तुझको बाहों में, Like हल्दी के लिए अच्छा है। यादों में जब तक है सांस तुम मेरे, छू लूं मैं तुझको फिजाओं में, हर पल दुआओं में, ना हो के भी हो तुम मेरे लिए। साथ फेरे संग तेरे, अब क्या अंधेरे क्या सवेरे, मेरी जिंदगी की तस्वीर तू, ये ख्वाब मेरे रंग तेरे, तेरी सादगी पे मरता हूँ मैं, तेरी आरज़ू ही रखता हूँ मैं, तेरी खुशियाँ ही चाहे ये दिल, तुझे खोने से डरता हूँ मैं, तुझे खो दे तो पागल I think ये बने, Crazy तेरी दिन का हर गाना है। अदाए कायल लगे, तेरी याद में लिखता हूँ गीत, इस दर्द से शायर बने। आ गई है, अब क्या है? जीते रहो। तुम भी जल्दी स्वागत बनो। चले रूट पे ब्रेक कहाँ लगेगी डिपेंड करता मूड पे, आती नहीं चलानी मांगे चाबी दोस्त कूट दिए, साले ये हरामी मुझे छोड़ेंगे हाँ लूट के। बातचीत बातचीत कैडी अपनी बातचीत, साथ सिर्फ खास सारे लौंडे हैं फैंटास्टिक, हार्ड हिट बार 6 खेलूं जैसे हार्दिक, क्लासिक गाने अपने फोड़े सीधा मार्केट। बातचीत बातचीत कैडी अपनी बातचीत, साथ सिर्फ खास सारे मेरे को ये लौंडे गाना हैं बिल्कुल फैंटास्टिक, पसंद नहीं आ रहा, सच बार बोलूं 6 तो। खेलूं जैसे हार्दिक, क्लासिक गाने अपने सारे फोड़े सीधा मार्केट। इतनी भूख लग रही है ना, सब कुछ ले आओ। सब ले आओ भाई। मैंने उनसे पूछा ही नहीं क्या क्या है, मैंने कहा जो है सब ले आओ। Okay, let's talk about now outfit. अच्छा, कोई एक outfit की जगह दिखाती हूँ और मैं उसके बारे में खुद बताऊंगी, ठीक है? ये है आउटफिट या जो फैशन सेंस है वो सबकी सेम नहीं होती, जैसे कि मैं बोल रही थी वीडियो के बीच में, एंड हमको जो पसंद आता है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी सेम पसंद आएगा। लाइक फैशन सेंस इज वेरी सब्जेक्टिव, और क्या पता इन दोनों को ऐसे सिंप्लीफाइड कपड़े पसंद आए हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के आउटफिट्स पे इतना ज्यादा डिजाइन्स नहीं चाहते हैं, ताकि ज्वेलरीज जो है, अदर मेकअप्स एंड ऑल एवरीथिंग, ताकि ज्यादा हाईलाइट हो। बट हमको ये चीज ज्यादा क्यों दिख रही है? बिकॉज इट्स इन रेड, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो भी ऐसे सेलिब्रिटी शादी हो रही है, ज्यादातर लोग व्हाइट कलर के या ऑफ व्हाइट कलर के जोड़ा पहन रहे हैं, बट बिकॉज शी इज वेयरिंग समथिंग रेड, तो रेड कलर के ऊपर ऐसे पूरा पता चल रहा है कि इतना ज्यादा डिजाइन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक। पर्सनली अगर तुम मुझे पूछो कि मुझे कैसा लगा, इट्स नॉट इन माई स्टाइल, मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बारे में बहुत गंदी तरीके से डिस्क्राइब करूंगी, जो कि सूफी मोती वाला ने किया, बिकॉज इट्स देयर वेडिंग। तुम ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हो? आई नो ट्रिगर्ड इंसान ने खुद भी ऐसे एक वीडियो बनाया किसी के शादी के ऊपर, उनके रीति रिवाज के ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बोलो कि जो पहला दिखा है वो ही लेके आ गई, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। दिस इज वेरी रूड, वेरी हार्श। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनके आगे जब चिल्ड्रन होंगे वो अगर देखेंगे, ऑब्वियसली देखने वाली जगह है, तुम डाल रहे हो पब्लिक में, तो एवरीवन हैज आल्सो द राइट टू क्रिटिसाइज यू, बट देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग, राइट? तो वो सूफी मोती वाला ने सही तरीके से नहीं अपनाया जो बोलने का तरीका है। यू कुड हैव पॉइंटेड आउट इन अ फनी वे, इन अ रेस्पेक्टफुल वे। व्हाट यू चोज इज टू रोस्ट देम इन अ सर्टेन मैनर, एंड दैट मैनर इज नॉट गुड
for a wedding video. Even ट्रेगर्ड इंसान ने जो राजा ब्लॉग के ऊपर वीडियोस बनाए थे उनके लिए उनको भी कॉल आउट मिला था, तो इट वाज एब्सोल्युटली नॉट राइट फ्रॉम सूफी मोतीवाला साइड. बट इफ वी टॉक अबाउट फुकरा इंसान हिमसेल्फ, ये जो वो कह रहे हैं कि लोगों को क्रिटिसाइज करके लोग व्यूज के क्लाउड चेस करते हैं ऑल, ये बात भी गलत है बिकॉज ये भी एक तरीके से हिपोक्रेसी में काउंट हो जाएगा. बोथ ऑफ यू ब्रदर्स कमेंट ऑन पीपल्स लाइव और रिएक्ट ऑन इट. अब देखो रिएक्शन करके तुम बस ऐसे करके बैठ तो नहीं रह रहे हो, कुछ ना कुछ तो बोल रहे हो. दैट इज व्हाट इज काउंटेड एज कमेंट्री, राइट? तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी को क्रिटिसाइज करके किसी पे कमेंट करके ऐसे क्लाउड चेस करते हैं लोग आजकल. यू गाइज आर डूइंग द सेम. You are posting something on public, so it's very natural for people to comment on it, even if their unborn kids watch it in future. और बाकी नहीं किसी की niche की that they wanted to follow up by giving commentaries on, you know, outfits and all, then there's a manner of speaking you should follow, and there should be decency, of course, because it's a marriage video. You should not troll since this is a video of emotion. Okay, that's all for this video. What do you think about it? Let me know in the comment section, and मिलते हैं next video में. तब तक के लिए bye bye.